Hello everyone, welcome back to another class. So today we are going to discuss about mass spring system since we were done with SHM, in which we have discussed about multiple terms which were acceleration, velocity, displacement, kinetic energy, restoring force, potential energy. Yeah, so let's go with mass spring system. First of all, here you can see this is I'm going to draw the mass spring system diagram. This is a spring and here the mass is placed. This is the, we can say, simple at the mean position where the mass is placed. This is what, this is mean position. When I'm going to, and we can say, make this, I'm going to stretch this. अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं इस बॉक्स को फोर्स लगा रही हूँ. I'm applying the force which is known as applied force. मतलब मैं अपनी खुद की एनर्जी लगाकर इस बॉक्स को टूवर्ड्स यहाँ पर टूवर्ड्स राइट लेकर जा रही हूँ. Like here you can see now the spring will be stretched और मैंने बॉक्स को मैं यहाँ पर लेकर आ गई by applying what? By applying the applied force. So here you can see this was the main point and here you can see this is what the box covered the displacement by applying the force. ये ऐसी force जो कि मैंने apply की which is applied force जिसके जरिए बॉक्स ने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया. ओके सिंस अब अगर यहाँ पर मैं अभी भी इसको अपना हाथ से इसको पकड़ के बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी तक अगर मैं इसको छोड़ दूंगी ना सो इट विल मूव टूवर्ड्स व्हाट इट विल मूव टूवर्ड्स मेन पॉइंट अगेन it will move towards main point again. So here you can see this was the main point and it comes to main point again because I we can say leave my hand. मैंने अपना हाथ छोड़ दिया मतलब मैंने applied force क्या कर दी? खत्म कर दी. तो जैसे ही मेरी applied force खत्म हो रही है ना तो there is another force जो कि इसको direct back to the mean position लेकर आ रही है जो कि इसको back to the mean position लेकर आ रही है और उस force को हम कहते हैं restoring force. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स जो कि कहाँ लेके जा रही है उसको मेन पोजीशन पर लेकर आ रही है जो कि उसको मेन पोजीशन पर लेकर आ रही है. ठीक है तो इफ we can say conclude and we can find out the equation from this. So we can say restoring force is डायरेक्टली proportional to x क्योंकि देखें ये डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली proportional है ना. ठीक है डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स लेकिन किसके अंदर? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. किसके अंदर? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. सो इट विल बी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. Restoring force is directly proportional to displacement but in the opposite direction. So here we can see if we will remove the proportionality sign, we will apply the spring constant and here we do have spring constant that is k minus kx. This is basically the term of Hooke's law. This is what term of Hooke's law. परफेक्ट. अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब नाउ वी नो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी. दैट इक्वेशन वाज F बराबर है एम ए के मीन्स F इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन. मास एंड एक्सेलरेशन तो अगर यहाँ पर मैं F को रिप्लेस करूँ बाय M है तो इक्वेशन विल बी एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और यहाँ से माइनस के मेरे पास बराबर का के होता है माइनस के अपॉन एम माइनस. अब यहाँ देखें ये हो गया हमारे पास माइनस एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इससे अगर इस इक्वेशन से मैं अगर एक्सेलरेशन मालूम करना चाहती हूँ तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? एक्सेलरेशन यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई हो रहा है मास वहां जाएगा तो डिवाइड होगा माइनस के अपॉन एम ओवर एक्स. ठीक है अपॉन एम ओवर एक्स. तो here you can see ये जो k और m है ना this k और m is known as spring constant. ये दोनों हमारे पास इस वैल्यू को हम बेसिकली बोलते हैं spring constant and this is for what? This is
We can say rigidity of what? Spring. Spring की कितनी rigidity है? Spring कितना rigid है? So if I can remove this minus kx, so here you can see acceleration is also directly proportional to displacement, but in the opposite direction. Opposite direction. So here it would be what? It would be a is equal to minus omega square x minus omega square x in the uniform circular motion. If I am going to find out the omega मैंने omega square क्यों लगाया? Because we know जो minus kx है ना, जो minus kx है that is equal to omega square. That is equal to what? That is equal to omega square in the angular velocity. तो यहाँ पर that's why we replace minus k upon m with the omega square, and the equation is a is equal to minus ओमेगा स्क्वायर एक्स. एंड यहाँ से अगर मैं अगर अगर ओमेगा स्क्वायर है ना, तो सिंपल अगर ओमेगा मालूम करूँ मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी का हम स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड हम रेडिकल लेंगे, दिस विल बी कैंसिल, और यहाँ पर हम रेडिकल देंगे के अपॉन एम का. रेडिकल के अपॉन एम का, तो डब्ल्यू बराबर है रेडिकल के अपॉन एम से. तो जब भी अगर whenever we are asked to find the angular velocity, we will use this formula if the spring constant and mass is given. अगर हमें spring constant और mass given है, spring constant और mass given है, ठीक है. ये तो हो गई हमारे पास किसी ओमेगा की. तो अब यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ जो जो हम इक्वेशंस, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम ऑलमोस्ट सारी इक्वेशंस पढ़ेंगे जिससे हम सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड. तो जैसे कि हमने पढ़ा था एसएचएम के अंदर, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं 2 पाई लिख रही हूँ और मुझे पता है ओमेगा किसके बराबर था, ओमेगा वॉज इक्वल टू वॉट? ओमेगा वॉज इक्वल टू रेडिकल के अपॉन एम के. एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई है तो इसको रिवर्स कर डिवाइड फोरियर फॉर्म, इसको रिवर्स करूंगी तो ये मल्टीप्लाई होगी, इट बी 2 पाई रेडिकल एम अपॉन के. ये रिवर्स हो जाएगी क्योंकि इसको डिवीजन से मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेकर आई हूँ. तो दिस इज इक्वेशन टू फाइंड आउट व्हाट? टू फाइंड द टाइम पीरियड. नाउ अब ओमेगा के अंदर और टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर m अपॉन के मीन्स हेयर टाइम पीरियड के साथ मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और यहाँ पर मास क्या था? हेयर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एंगुलर वेलोसिटी. Okay, so this is equation for the time period. Time period. And now here time period is done. If we can go with the frequency, तो हमें पता है frequency is what? Frequency is the inverse relationship of time period, जो कि हम बहुत पहले एसएचएम में हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो here we are just going with the formulas. So frequency is what? Frequency is nothing but the inverse of time period. तो आप देखें यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, तो 1 अपॉन एंड टाइम पीरियड का हमें पता है टाइम पीरियड इज व्हाट? इट इज 2 पाई रेडिकल m अपॉन k. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट टाइम पीरियड राइट नाउ. ठीक है, ये हमने टाइम पीरियड को डिस्कस किया था. अब अगर इसको हम क्या करें, इन्वर्स करते हैं, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी में बोलूं तो ये किसके बराबर होगी? 1/2 पाई रेडिकल के अपॉन एम. ये डिवीजन में है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ 2 पाई रेडिकल के अपॉन एम. दिस इज व्हाट वी हैव फाइंड आउट व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. Frequency of what? Frequency of simple harmonic motion. Oh, sorry. Frequency of spring mass system. Spring mass system.
नाउ आफ्टर फ्रीक्वेंसी एज वी वर डन विद द एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लिया था। लेट मी राइट हियर अगेन, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर किसके थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, और हमें पता है यहाँ पर ओमेगा किसके बराबर है, माइनस के अपॉन एम किसके बराबर है, ये है हमारे पास इक्वल ओमेगा के, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। नाउ वी आर गोइंग विद द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमने जैसे कि पढ़ा था, वेलोसिटी वाज इक्वल टू माइनस, वेलोसिटी वाज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वो वेलोसिटी है जो कि हम एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ चुके थे। तो अगर हम इसको स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर देखें तो इसका फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू लगा देंगे। अब हमने ओमेगा का पढ़ा था, ओमेगा वाज इक्वल टू रेडिकल के अपॉन एम, ओमेगा किसके बराबर था, रेडिकल के अपॉन एम के, जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। ओमेगा की वैल्यू लगाकर एंड रिमेनिंग वी विल पुट सेम, जो कि है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके जरिए हम स्प्रिंग मास सिस्टम की क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट, अब हम डिस्कस करते हैं जो कि हमने वी कैन से साइनोसोडियल ग्राफ के अंदर इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि थी हमारे पास जब हमारे पास टाइम कहाँ हो, मीन पोजीशन पर हो, टाइम जीरो हो, t इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर, मीन पॉइंट पर। और दूसरा हमारे पास था x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये हमारे पास इक्वेशन कब थी, जब हमारे पास टाइम जीरो हो लेकिन ये हो एक्सट्रीम पोजीशन पे, कहाँ हो, ये हो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर। और अगर हम इस इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे तो दिस इक्वेशन वुड बी x इज इक्वल टू साइन, अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, रेडिकल के अपॉन एम, रेडिकल के अपॉन एम इंटू टी, and second equation will be x is equal to, sorry, x naught cos, ओमेगा की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे k अपॉन m इंटू टी। तो ये हो गई हमारे पास, वी कैन से जब टाइम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो हम स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर ये इक्वेशंस यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास इक्वेशन किसकी होती है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी की पढ़ी थी इक्वेशन, वी कैन से एसएचएम के अंदर, जो कि थी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है जो कि हमने एसएचएम के अंदर पढ़ी थी। अब ये देखें, ये सेम इक्वेशन है, ये हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पे मालूम करनी है, जैसे कि मिनिमम पे तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, लेकिन अगर कोई पूछे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, के एक्स नॉट स्क्वायर सिर्फ ये होगी जब आपको क्या मालूम करना हो, जब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो, किसके अंदर, मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर। लास्ट विच इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है, हाफ के एक्स स्क्वायर है, जो कि हम किसी भी पॉइंट पे मालूम कर सकते हैं। और मिनिमम पे तो हमें पता है, मैक्सिमम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट वो जीरो होती है। मैक्सिमम नहीं यहाँ पे बोल सकते, हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर मेन पॉइंट की बात की जाए तो मेन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मेन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है मैक्सिमम, जो क्या होती है, के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। लास्ट काइनेटिक टोटल एनर्जी, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास बराबर होती है
सेम ऑफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो आई होप ये आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने एसएचएम के अंदर भी यही पढ़े थे और यहाँ पर टाइम टू टाइम मैंने आपको सबके फॉर्मूलाज भी बता दिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस एमसीक्यूज रिलेटेड दिस। टिल दैट बाय बाय।